Hulle Hulare under the banner of Music and Sound produced by Wenkies. And can everybody? Everybody's here? I once again thank all the media personnel who are a part of this press conference. We have with us the godfather of the company and basically a godfather of the Indian Bollywood singing industry, who's been giving opportunities to different talent across the globe and giving them platforms. None other than the king himself, who's so successful and lucky to give us all his artists an opportunity. One and only Mika Singh. Thank you so very much. And we also have with us our well-wishers, our support system, Navraj and Krishna. Thank you so very much for being a part of this press conference. And of course, coming to the girl we're celebrating today, a girl who's performed with Mika Singh all over globally. She's been singing for the last 7 to 8 years. She comes from a music family herself, and she's got an amazing voice, and we are very proud to have her with us on board. And we'll be presenting her song, launching her today in front of all of you. Please give a round of applause for Tarika Bhatia. Thank you so much, guys. Thank you. We are very, very happy that we've got such wonderful friends, colleagues who are always a part of our success. And I once again would like to thank Navraj, who comes from a legendary family, who's always with us to promote. Of course, legendary family, everybody knows. He is the son of great Hansraj Hansji. And thank you for giving all the talent the feeling that, you know, we also belong to this group, and we feel very welcomed to have all of you a part of this success journey. Thanks for having me. Thank you so much. Thank you once again, Windsor. Windsor, the property is amazing for making us do this press conference over here. And Krishna, of course, you made the world laugh with all your jokes, and I'm glad that, you know, with all your laughter, positivity, this event and press launch is going to get even better. Thank you so very much. Thank you. Geeta, we've got another talent with us who is, you want my mic? We launched her single a few weeks back, and we got two talents. I'm surrounded by two talents, Tarika and Geeta. She's from a different part of the country. She's from London, and she's also part of Music and Sound's talent. And we're also very happy that she's a part of this journey as we launch another talent of ours. Thank you so very much. I'll give the mic to our lady who we're celebrating today, Tarika Bhatia. Thank you. Thank you so much, Aarti. That was very kind and very sweet. I'm really thankful to Mika ji for this opportunity and the way we are celebrating the launch of my new song. Hulle Hulare is like a very upbeat party number, you know, something that the youngsters will love today. And मैं चाहती हूँ कि आप सभी इस song को सुने and बहुत ही enjoy करें. And हाँ, obviously, you know, आप सब बड़ों की blessings के बिना and सारे हमारे pure group के support के बिना we are nothing. We artists so need all your blessings and support and love always. Thank you so much for all the support that you give all of us new artists and help us become big people. So thank you so much, guys. Thank you so much, Tarika. I want Geeta to say something because Geeta has sang with Tarika, and the both of you have performed. Achha, theek hai. I'll take your interview after the song. So presenting the song that we're celebrating today, please zoom in to the video that we're showing you. Hulle Hulare by Tarika. घर लिया हुआ है और इसलिए मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे लॉन्च पार्टी करें और आप सभी एक खूबसूरत माहौल देखें, इतना अच्छा एटमॉस्फेयर है।
एंड नवराज भी ढूंढ रहा है एक अच्छा फ्लैट। तो नवराज डील ये है कि पहले अगर यहाँ पे लॉन्च करना है तो आपको एक फ्लैट लेना पड़ेगा, ठीक है, बहुत सस्ती डील है। सो थैंक यू विंट सर एंड थैंक यू आप सभी का, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और जैसे म्यूज़िक एंड साउंड न्यू कमर्स को सपोर्ट करती आ रही है। एंड बहुत अच्छी बात है कि जिन जिन आर्टिस्ट के साथ मैं जुड़ा हूँ या मेरा प्यार रहा है, सो उनके आज गाने चल रहे हैं। स्पेशली नवराज के लिए जोरदार तालियां। नवराज के हर मूवी में आजकल गाने छा रहे हैं, स्पेशली बागी 2 में इनकी गाने की वजह से 140 करोड़ फिल्म ने कमाया बिकॉज ऑफ नवराज का जो गाना था। सो आई एम सो हैप्पी फॉर नवराज और मैं यही दुआ करूँगा जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं वो आगे आगे आएँ और इस जितने भी हम एल्बम बना रहे हैं या आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं वो पैसा कमाना हमारा मकसद नहीं है। पैसा भगवान ने इतना दिया, देखो विंडसर में 2 फ्लैट, इससे पैसा और ज़्यादा क्या चाहिए। बट मैं चाहता हूँ कि न्यू कमर्स आगे आएँ, न्यू टैलेंट आगे आएँ, चाहे वो कोई पॉप गाता है या कोई रैप गाता है या कोई क्लासिकल गाता है, तो यही मेरी सोच है। थैंक यू सर। मिका पाजी के लिए वाकई एक बार ज़ोरदार ताली बजा दीजिए। इट्स अ वंडरफुल थिंग, आई एम हैप्पी टू बी हियर। और एक दोस्त की तरह नहीं, एक फ़ैन की तरह मैं कहूँगा कि ये नई कंपनी लॉन्च की, इट्स सो वंडरफुल। आप नए टैलेंट को चांस दे रहे हैं और मिका पाजी के इतने हिट गाने आए हैं, 100 से भी ज़्यादा होंगे। तो ये अपने गाने की तरह ही हैं। इनका एक गाना आया था, बिकॉज ही इज़ अहेड ऑफ टाइम्स, जैसे वो दुनिया चले पिछाड़ी तो मैं चलूँ अगाड़ी, सब खेल जानता हूँ मैं हूँ बड़ा खिलाड़ी, सुमड़ी में लेके जाऊँ और सबको बताऊँ चिंता था। तो मिका पाजी भी वैसे ही हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम, फैंटास्टिक। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। नवराज, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सबको गुड इवनिंग। और दूसरी बात, मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ इन सबसे, काम में भी और वैसे भी। मैं तो बहुत बड़ा फैन है भाजी का। थैंक यू मैंने बुलाने ਲਈ इन्नी बड़ी जगह पे और इतना प्यार देने ਲਈ थैंक यू भाजी। मैं तो इनका फ़ैन भी हूँ और सबको पता है कि ये किंग हैं बॉलीवुड के। जब इनके मुंह से तारीफ सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और ये जो मेरा भाई बैठा है पता नहीं क्या बोल देंगे, लेकिन मैं इनका भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। और थैंक यू आप सबका आने के लिए। तारिका गाना बहुत अच्छा है, पर मुंडिया तो बच के रही तो होने हुई मुंडिया। आपको कुछ पूछना है, आप पूछ सकते हैं। सबसे पहले जानना चाहेंगे इसकी शुरुआत कब से हुई और अपने प्रोडक्शन से नए नए टैलेंट को नई अपॉर्चुनिटी देना, ये आपके दिमाग में थॉट कब से आया? पहले हमने एक शो निकाला जिसका नाम है एक्चुअली म्यूजिक एंड सॉन्ग। काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था। अगर आपने सारे गानों बात देखा हो तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनको मैंने बहुत सपोर्ट करा। इनफैक्ट तब से मेरे माइंड में था कि बजाय मैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करूं, क्यों ना कुछ ऐसा करूं जिसके थ्रू वो अपना मुकाम बनाएं, अपना नाम बनाएं। सो एक मैंने यूट्यूब पे शो निकाला जिसका नाम है ओल्ड इज गोल्ड। सो मैं और सारेगामापा ने मिलकर वो शो बनाया जिसमें हम पुराने गाने लॉन्च करते जा रहे हैं। एंड देन फिर ऑलमोस्ट हमने 20 वीडियोस के रिलीज़ करें और उसके अलावा पंजाबी गाने बहुत लॉन्च कर रहे हैं। देन गीता का हमने एक गाना लॉन्च करा है और मूवी भी सरदार साहब प्रोड्यूस करेंगे। देन धीरे धीरे मुझे लगा कि हर वो जो बच्चा जो अच्छा गाता, सुर में गाता, हम उसको आगे लेके आएँ। रियलिटी शोज भी बहुत चल रहे हैं जिसमें बच्चों को चांस मिलता है और उसके अलावा टैलेंट इतना है, राजस्थान, पंजाब। एक टैलेंट तो आपके सामने ही नवराज, बिकॉज नवराज को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बिकॉज उनके पापा का बहुत नाम है, उनके चाचा का बहुत नाम है, पूरी फैमिली का बहुत नाम है। बट आई एम सो हैप्पी फॉर नवराज के इतना बाउंड्रीज तोड़ के वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम आगे ला सकते हैं। और अगर आप ओल्ड इज़ गोल्ड जाके आप देखेंगे म्यूज़िक एंड सॉन्ग का, तो सारे हमने लता जी के गाने, रफी साहब के गाने, किशोर दा के गाने के कवर्स करें ताकि उन न्यू कमर्स को आगे आने का मौका मिले। जैसे आप नए नए टैलेंट को मौका देते हैं, जी जी। तो हम ये कह सकते हैं आप सलमान भाई से इंस्पायर हैं। सलमान भाई से तो सारी दुनिया को इंस्पायर होना चाहिए और वो तो हमारे बड़े भाई हैं। एंड वो काफ़ी लोगों को आगे लेके आते हैं। मुझे भी बड़ा उन्होंने सपोर्ट करा और मेरे गानों ने उनको बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैं मजाक में बोलता रहता हूँ, बट ही इज़ अ ग्रेट मैन एंड आई थिंक वी शुड फॉलो हिज स्टाइल। एंड
खैर उनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन नहीं, बट मेरी सोच है कि हम बच्चों को चांस दें, न्यू टैलेंट्स को आके लेके आएँ। और उसमें कोई एज की लिमिट नहीं है कि कोई 40 साल का है या 50 साल का वो नहीं गाएगा, सिर्फ यंग ही गाएंगे। तो जो भी अच्छा गाता है हमारी यही सोच कि हम उसको आगे लेके आएँ। जब भी कोई नई कंपनी खोलता है, प्रोडक्शन जी। खोलता है, ये सॉन्ग माशाल्लाह बहुत अच्छा था, तो आपको लगता है कि थोड़ा बहुत आप भी इस गाने में आ सकते तो बहुत और चार लगे होते? अगर मैं आता तो फोकस मेरी तरफ हो जाता। तो बहुत सारे ऐसे गाने हैं जिसके अंदर मैं खुद आ रहा हूँ साथ में, बट जैसे नवराज का अगर आप देखेंगे एक गाना उन्होंने गाया तू जहाँ जा, जो लता जी का गाना है, बहुत मुश्किल गाना है। आप सुनेंगे आपको खुद ही पता चलेगा कि कितना किस तरीके से हम गाने को और चार चांद लगाने की कोशिश करते हैं। तो उसने बहुत अच्छा गाया। वैसे ही तारिका ने गाना गाया आगे भी जाने ना दूंगे, वो जो गाना है वो भी अगेन लता जी का गाना है, आशा जी का गाना। तो अगर आप देखेंगे शो तो आपको पता चलेगा कितने अच्छे अच्छे वहाँ पे सुरीले बच्चे वहाँ पे गाना गा रहे हैं। और ज्योतिका को हम 1.5 साल पहले लेके आए थे। आज ज्योतिका टांगड़ी ने बहुत सारे फिल्मों में गाने गा रही हैं। और अगेन हमारा ये टारगेट नहीं कि हम उनसे कुछ साइन वाइन करें, उनके से कुछ पैसा कमाएं। हाँ, ये 4 पैसे जरूर कमाएं, ज़्यादा ना कमाएं, लेकिन उनको आगे लेके आए। थैंक यू। तारिका दी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और सर सबसे पहले जोरदार ताली मेरे भाई के लिए। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये भी मेरे बड़े प्यारे भाई हैं। एंड इनके जब भी क्वेश्चंस होते हैं बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। एंड मेरा इनसे दिली बहुत प्यार है। सर वेलकम। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द सॉन्ग। थैंक यू सो मच। ये जो सॉन्ग था इंस्पायर्ड था कहीं से प्रेरणा मिली जो आपने ये सॉन्ग को चुना और इस पे बनाया? हुल्ले हुलारे जैसे पंजाबीज में एक फोक एक्सप्रेशन है, इट्स लाइक एन एक्सप्रेशन ऑफ जॉय। तो हमने बस वो लाइन ली एंड हमारा मेन मोटिव था कि हमें एक न्यू पार्टी सॉन्ग बनाना है। तो वी जस्ट टुक दैट वन लाइन एंड बाकी हमने पूरा इस गाने को रिक्रिएट किया है, बिकॉज पीपल कैन एसोसिएट विद दैट लाइन। वो लाइन सभी ने सुनी है, तो वो लाइन सुन के पीपल को एक वो पुराना एक पंजाबी स्पेशली उनको एक वो बड़ा वो अच्छा लगता है, वो हुल्ले हुलारे इट्स अ जॉय काइंड ऑफ एन एक्सप्रेशन, सो दैट्स हाउ। मीका जी, आप नए लोगों को चांस दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, पर ब्रांड मीका को का ही ये एक्सपेंशन है आपको लग रहा है? नहीं, मेरे ज़रिए बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। जैसे अगर आप कोई भी रियलिटी शो देखते हैं उसमें जो जजेस होते हैं उनका काम यही होता है कि ताकि लोग जजेस को देख के शो को देखें। जब शो को देखते हैं तो वो जजेस भूल जाते हैं, फिर टैलेंट को देखते हैं। तो यही मेरा टारगेट है कि डेफिनेटली पहले मैं अपना चेहरा लेके आऊँ, लेकिन मेरी बात तो जो भी सिंगर गाएगा उसी का टैलेंट आगे चलेगा। जैसे आपका टीवी शो आप देखो, कभी भी जब रिपोर्ट होती है उसके अंदर या एक न्यूज़ चलती है तो न्यूज़ में लोग रिपोर्टर को भूल जाते हैं बट न्यूज़ को याद रखते हैं। तो वैसे ही मेरा टारगेट कि मैं अपने ज़रिए इनको लेके आऊँ, तो जब ये गाना गाएंगे तो मुझे भूल जाएंगे, गाना चलेगा। मीका जी, सेम टाइम अगर हम टैलेंट की बात करें, जी। कृष्णा आपके सामने टैलेंट की भंडार है। कृष्णा बाप है, मतलब बहुत ही अच्छा डांसर। ये सारी चीज़ें इसको भगवान ने दी हैं। सबसे पहले तो गोविंदा का भाई और मेरे बाजू में बैठना, ये किस्मत की बात है यार। उसके अलावा 6'3", भगवान हाइट भी देता है, इसको हाइट दी है। डांस देना तो इसको डांस दिया, वाइफ दी तो इसको वाइफ दी है। शो मिले तभी किसी के लोगों को शो भी छीन भी लेता है, किसी के शो में घुस भी जाता है। तो ये सारे टैलेंट एक ही बंदे में है, वो है कृष्णा। और तो अगला एल्बम मेरे साथ ही है। हाँ, नहीं अगला नहीं, अभी मुझे अपनी फिल्मों में गवा रहा है और बहुत सपोर्ट कर रहा है। थैंक यू सो मच। एक गाना मैंने गा दिया है, एक गाना मैं और गाऊंगा। और एक्टर भी आ रहे हैं इनकी, एक मूवी बन चुकी है, एक मूवी और इनकी आ रही है। सो माई बेस्ट विशेस। एक ही आदमी जो हर जगह ऑलराउंडर है, हर जगह घूम जाता है, चाहे आप रियलिटी शो में ले आओ, फिल्मों में ले आओ। जब इनको टैलेंट दिखाने का मौका मिला तो इन्होंने दिखा दिया। अभिषेक जी के साथ जो फिल्म आई थी बोल बच्चन में छा गए थे भाई साहब। सो मैं शुरू से इनको बहुत प्यार करता रहा और अभी भी करता रहूँगा। तो मैं पहली बार मैंने इतने बड़े स्टार को मैं क्या यार, छोटे बच्चों को आप सपोर्ट करो। सो थैंक यू कृष्णा। बेसिकली ये फ्लैट देखने आए, ये फ्लैट देखने आए यहाँ। मेरा आशीर्वाद इन पे ऐसे ही बना रहेगा। लव यू बाय। मीका जी, एक चीज़ अनुमति दीजिए एक और प्रश्न पूछने के लिए। डू यू थिंक इट्स सॉर्ट ऑफ विक्ट्री फॉर द सिंगर्स विद द रॉयल्टी इशू विच हैज़ बीन नाउ इन फेवर ऑफ ऑल द सिंगर्स? विक्ट्री तो है ही है, एंड मैं तो दुआ ही करूँगा। और
बिकॉज हमें तो शुरू से बहुत मैं लकी रहा हूँ दिलीप भाजी की बदौलत, काफ़ी मुझे सपोर्ट मिला लाइफ में। बट न्यू कमर्स के लिए बहुत अच्छा होगा आने वाले टाइम के लिए। एंड बड़े बड़े रियलिटी शोज आ गए हैं, हर फिल्म में हर किसी को गाने गाने का मौका मिल रहा है। पहले एक ऐसा था कि यार ये गाना मेरी आवाज़ में अच्छा लगेगा या सोनू जी की आवाज़ में अच्छा लगेगा या टिपिकल या राहत साहब की आवाज़ में अच्छा लगेगा। अभी ऐसा नहीं है, अभी गाना अच्छा है, कोई भी गाना गाए, हिट गाना। सो वैसे ही अगर आने वाले टाइम में रॉयल्टी मिले तो बहुत अच्छी बात है, स्पेशली न्यू कमर्स के लिए। लता जी ने शुरुआत की थी और अब लगभग आप लोगों की जीत हुई है। एक्चुअली कई लोग समझ नहीं पा रहे इसके क्या मायने हैं, अगर आप बताएं इस चीज़ के। इसके देखिए, अगर एक ही गाना सुपर हिट हो जाता, जैसे मेरे तो बहुत सारे हिट हुए हैं, तो पता नहीं कितनी रॉयल्टी मेरी बनती है। तो मैं तो खुले दिल से कहूँगा कि भाई मुझे आप 50% रॉयल्टी दे देना, 50% आप न्यू कमर्स को बांट देना मेरी रॉयल्टी, अगर इतनी बनती होगी तो। बट थैंक्स टू लता जी। एंड उस टाइम वो टाइम बड़ा अच्छा था। सारेगामा एक कंपनी थी जो अभी भी है, उन्होंने हर किसी को बहुत ज़्यादा रॉयल्टी दी। अगर आप चेक करेंगे उनका पुराना जितना भी उन्होंने रिलीज़ करे गाने अभी तक, जैसे जगजीत सिंह जी हो गए, आशा जी हो गए, इन सबको रॉयल्टी वगैरह जाती है। तो वो ट्रेंड अगर वापस आ जाए, और आज तो म्यूज़िक बहुत बड़ा हो गया, आज एक गाना जो व्हाट्सएप पे भी चल जाता है, सोशल मीडिया पे भी चल जाता है, पहले इतने एक्सपोजर नहीं था। तो डेफिनेटली रॉयल्टी बन जाए तो हम सबका फ़ायदा ही होगा। अजय आप बोलेंगे आप इस पे रॉयल्टी पे अभी तो गाने मिल जाए मुझे बहुत है, अभी 3-4 तो गाने हैं मेरे, तो मैं अभी सिर्फ गानों की तलाश में, रॉयल्टी की तलाश में। I ain't got a clue about that, man. I'm just, looking towards my new songs. That's it. अगर हम बात करें सॉन्ग की, रेवान साहब ने न्यू कमर्स को बहुत चांस दिया। ये थोड़ा जिमी पानी पीने मंगवा दें सर के लिए। जी सर। जैसे रेवान साहब ने न्यू कमर्स को बहुत चांस दिया। जी। आपको लगता है कि रहमान के बाद आपका नंबर 1 होगा? नहीं यार, मेरा किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। रहमान साहब बहुत बड़े हैं एंड बहुत ही उनकी रिस्पेक्ट है हमारे दिल में, और बहुत लोगों को चांस तो दिया, लेकिन इंडिया का नाम रोशन उन्होंने करा। बट मेरा कि अगर मेरे जैसे हम इंडिया में, मेरे जैसे अगर मेरे से बेटर भी या मेरे आसपास भी सक्सेसफुल जो सिंगर है, अगर वो एक थोड़ा सा जिम्मा उठा लें तो बहुत इजी काम है, बहुत ही इजी है किसी को लॉन्च करना। बाकी उसको छोड़ दो, उसकी किस्मत है। किसी को एक गाना मिल जाए, अच्छा गाना मिल जाए, उसकी एक लाइफ शुरुआत हो जाती है। तो मेरी भी वही सोच है कि अगर आज मुझे इतना भगवान ने दिया तो मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं थोड़ा शेयर कर दूँ और सपोर्ट कर दूँ। थैंक यू जी। कृष्णा, आपसे बाद में बाइट देंगे अलग से जनता? इनकी नेक पे बाइट कर देना। आप दे दो। नहीं कोई बात नहीं, अब दो, सबके बारे में दो, कोई टेंशन नहीं यार। कुछ तो लोग हैं जो मीडिया को अच्छा हैंडल कर पाते हैं, जो नहीं कर पाते उनको मत करने दो, जो कर पाते हैं हम करेंगे ना यार। जी सर। Can we have some vocal cords to be strengthened since it's a music launch? हमारे अपकमिंग स्टार जो पहले भी स्टार थे, अब फिर दोबारा से वो स्टार बने। Hi, my question is for everyone. मिका, आप सबसे जानना चाहूँगी मैं, एक तरफ हम लड़कियों को प्रमोट करते हैं, उनके टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं, एक नारे लगा रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दूसरी तरफ हमारे देश में एक बहुत ही गुस्से का माहौल चल रहा है। आप सबको पता है 8 साल की बच्ची के साथ इतना दर्दनाक हादसा हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पे, आप लोगों का रिएक्शन जानना चाहेंगे? मेरे हिसाब से तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उन अपराधियों के लिए। एंड ये एक बार का प्रॉब्लम नहीं है कि इसको हमारी प्रॉब्लम क्या चली लाइफ में कि हम कुछ भी इतना बड़ा हादसा होता है तो 4-5 दिन में उसको भुला देते हैं, विच इज़ वेरी बैड। हमें इसको हर बार आवाज़ उठानी चाहिए। एंड मैं हो सकता है बड़ा कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूँ, हमें यही याद आता है कि सलमान भाई ने एक हिरन को मार दिया और उसके लेके 20 साल तक एक ही चीज़ चल रही है। 20 साल में पूरे हिंदुस्तान का जो खर्चा है वो सिर्फ एक हिरन के ऊपर जा रहा है। पूरी कायनात, पुलिस का खर्चा, जुडिशरी, सलमान भाई का खर्चा, पूरी दुनिया का एक नज़र वहीं पे जा रही है। और जब आज इतना बड़ा हादसा हुआ है कश्मीर के अंदर, और सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे मुसलमान भाई या हिंदू भाई हैं, मैं जरूर चाहूँगा कि इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान वाली लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ये मुद्दा हम सभी का है। वो बहन बेटी, वो हिंदू की भी है, सिख की भी है और मुसलमान भाई की भी है। तो इसको हम कंट्रोवर्शियल ना बनाए या एक धर्म
के बीच में इसको ना लेके आए। तो हमारे हिंदुस्तान की प्रॉब्लम क्या चल रही है कि हम इतने बड़े हादसे को मुझे लगता है कि 5-10 में लोग भूल जाते हैं, फिर कुछ नई बात होती है, हम फिर उसके ऊपर मुद्दा उठाते हैं। ये बार बार हमें आवाज़ उठानी चाहिए, बार बार हमें लोगों को जगाना चाहिए, मिल के आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये चीज़ रुके। ये हमारा फोकस रहता कि किसी पॉलिटिशियन ने क्या किया, किसी सेलिब्रिटी ने क्या किया, तो सारा ध्यान वहाँ बढ़ जाता है। बट जब आम आदमी के साथ ये चीज़ होती है तो हम 5 दिन आवाज़ उठाते हैं, फिर 10 दिन में भूल जाते हैं, भूल ऐसे जाते हैं जैसे वो कोई बात ही नहीं हुई। तो ये एक तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए उनके लिए, उनके अगेंस्ट, और जल्द होनी चाहिए। और मैं हैरान हूँ कि वो बंदे पकड़े नहीं जाते, मिलते भी नहीं हैं, सब वहाँ पे कैमरास होते, सारी चीज़ें होती, लेकिन वो लोग नहीं पकड़े जाते जो इतना बड़ा जुल्म करते हैं। और आम आदमी बेचारा कोई अगर अच्छा बिजनेसमैन है वो बड़ी जल्दी पकड़ में आ जाता है, और हमारा सारा टारगेट या फोकस, हमें भी मज़ा आता है, हाँ फलाना बंदा जेल में जा रहा है, फलाना बंदा ने काम गलत करा है, लेकिन जो ऐसे लोग हैं वो आराम से घूम रहे हैं। सो आई थिंक ये ना कि सिर्फ आज या 2 दिन या 10 दिन, ये हर रोज़ हमें इसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। कृष्णा एंड नवराज आपसे भी जानना चाहिए। आई डू एग्री विद मिका बाजी, क्योंकि जब ये न्यूज़ बाहर आई थी तो सब लोग अपसेट हो गए थे, और यू गेट वेरी एंग्री, एक ऐसा गुस्सा आ जाता है आपके अंदर। तो जैसे मिका बाजी ने कहा कि एक कड़ी से कड़ी सज़ा और एक इमीडिएट एक्शन होना चाहिए यहाँ, ना कि आप हमारे हिंदुस्तान में आप सेलिब्रिटी से पूछ रहे हैं, पॉलिटिशियन से पूछ रहे हैं, उससे पहले इतना स्ट्रिक्ट एक्शन इनके अगेंस्ट ले लेना चाहिए। उसके बाद लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ हुआ क्या और क्या दर्दनाक उनके साथ किया गया जिन लोगों ने ऐसा किया। आई थिंक इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए सरकार को, ना कि ये 4-5 दिन चले, 6 दिन चले, उसके बाद उसको पकड़ा जा रहा है, फिर लाया जा रहा है, फिर कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। इससे पहले ऐसे बंदों को ख़त्म कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ इनकी बात से, मिका बाजी की और कृष्णा भाई की। ये बहुत ही गलत हो रहा है जो भी हो रहा है, क्योंकि आप यकीन कीजिए 11-12 महीने हो गए मैंने टेलीविज़न नहीं देखा। मैं जब भी न्यूज़ लगाता हूँ मुझे कुछ ना कुछ ऐसे सुनने को मिलता था जिससे मैं बहुत डिप्रेस हो जाता था। मुझे लगता था यार ये क्या हो रहा है हमारे देश में। मुझे न्यूज़ देखने का इतना ज़्यादा शौक है, पिछले जब से मैं पैदा हूँ शायद न्यूज़ सुन ही रहा था, फॉलो कर रहा था, लेकिन लास्ट 10-11 महीने से मैंने न्यूज़ नहीं देखी, टीवी बिल्कुल बंद किया हुआ है। पर फिर भी जब, क्योंकि हमारे पास व्हाट्सएप है, हम फेसबुक पे एक्टिव हैं, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू जब ऐसी चीज़ें आती हैं तो बहुत बहुत ही दिल दुखता है कि यार ये मतलब उस बच्चे का क्या कसूर है। 8 साल का बच्चा, चाहे वो मुस्लिम का बच्चा हो या हिंदू का हो या सिख का हो, किसी का भी हो, बच्चा तो बच्चा ही है। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए इस टाइम, तो बहुत जल्दी होना चाहिए। ये नहीं कि केस चल रहा है, तरीक चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए। ऐसे क्राइम को तो रोकने के लिए कुछ बहुत सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। कृष्णा, मेरा आपसे एक सवाल है। हम सब जानते हैं आप बहुत ही अच्छे कॉमेडियन हैं। इन दिनों एक और कॉमेडियन है, आप जानते ही हैं क्या मुद्दा चल रहा है, कपिल शर्मा का। काफ़ी सवाल उठ रहे हैं उन पे। मैं आपको बताऊं कि मैं काफ़ी टाइम से कपिल से टच में नहीं था, लेकिन इस बार बिकॉज मेरे हिसाब से ही इज़ अ नंबर 1 स्टैंड अप कॉमेडियन इन इंडिया, और मैं हमेशा से कहता हूँ उसका मैं फ़ैन हूँ। और इस बार मैं बहुत डिप्रेस हो गया था जब मुझे पता चला, मैं बहुत अपसेट था। मैंने फर्स्ट टाइम उससे 5 साल बाद बात की। इस बार आई कॉल्ड हिम, और वो भी काफ़ी अपसेट था। तो आई थिंक एक एक्टर जब फेजेस आते हैं ना लाइफ में ऊपर नीचे, तो कभी कभार इंसान से गलतियां हो जाती, मैं ये कहना चाहूँगा। और आई थिंक कपिल को अभी टॉर्चर नहीं करना चाहिए, लोगों को भी। वो ऐसे स्पेस में है ना कि जब गलत स्पेस में आदमी कभी कभार कुछ गलत बोल देता है, कभी कभार गलत रिएक्ट कर देता है। ही इज़ अ वंडरफुल गाय, ही इज़ अ गुड पर्सन। मिका बाजी का भी दोस्त है वो, और बहुत अच्छी, ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग, फैंटास्टिक एक्टर। बट आई थिंक वो फेज़ ऐसा आ गया कि वो उस तरीके से उससे गलती अगर हो रही है, मैं कहना चाहूँगा। मेरे हिसाब से जैसे मेरी बहुत सारे रिपोर्टर्स के साथ मेरी दोस्ती है, और कई बार मैं भी भड़क जाता हूँ। एज ए फ्रेंड मैं भी बोल जाता हूँ। अगर मैं, जैसे मेरा स्मिथ मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और आज से नहीं, आई गेस 12 साल से हम दोस्त हैं। 12 साल में बहुत टाइम मैं कभी इन पे जोक भी कर देता हूँ, कभी फ़ोन पे कुछ बोल भी देता हूँ। तो हमारी एक अंडरस्टैंडिंग है कि स्मिथ मेरी बातें लीक ना करे। इस भरोसे पे मैं स्मिथ को डांट सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि यार
ये तुमने गलत लिखा, ये तुमने अच्छा लिखा। तो कहीं ना कहीं जो भी रिपोर्टर थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता कि वो पॉपुलर हो जाएंगे मेरे नाम से, उनको भी ये नहीं करना चाहिए था। अगर कपिल कई जगह रॉन्ग है, कपिल हो सकता है कि कपिल एज ए फ्रेंड उनसे बात कर रहा हो, या जहाँ तक भी बात बढ़ी, वो चीज़ को लीक करना, वो हमारी एक रिपोर्टर और एक सेलिब्रिटी की एक दोस्ती है। आज आप यहाँ पे आए हैं, वी आर बिकॉज ऑफ यू। आज हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कई बार अगर मैं मेरे PR से मैं बात करता हूँ, या मैं किसी रिपोर्टर से जिससे मैं कंफर्टेबल हूँ, मैं खुल के बात कर रहा हूँ कि यार ऐसा ऐसा क्या है। हो सकता है वो वही रिकॉर्ड हुआ, उससे पहले वो 10 बारी फ़ोन करा हो उन्होंने, वो चीज़ सामने ना आई हो, लेकिन उसकी जो एक गलत बात है वो हम आगे लेके आए। सो मैंने पूरी कॉन्वर्सेशन सुनी, मैंने भाई से भी बात करी, कपिल भाई से, एंड आई नो कि उसने गलत करा या हुआ, लेकिन हो सकता है उससे पहले 1 घंटे की बातें चल रही हों, तो उन्होंने पूरा उकसा के वही चीज़ दिखाई। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से जहाँ कुछ डिबेट चलती होती वहाँ अच्छा लगता है TV पे लाइव उकसाना और बताना। उसको लीक करना तो एक हमारी अंडरस्टैंडिंग जो होती है रिपोर्टर और सेलिब्रिटी के अंदर, वो फिनिश हो गई है, वो नहीं होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से दोनों रॉन्ग है। तो मेरे पर तो हमेशा ही मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि इतनी कंट्रोवर्सी चलती रहती है, भगवान की इतनी कृपा है, लोग तरसते रहते हैं, लेकिन समवेयर मैं अंडरस्टैंड करता हूँ कि मुझे जवाब देना ही देना है, और ये आपका फ़र्ज बनता है मेरे से क्वेश्चन करना, और मेरा फ़र्ज भी उतना ही बनता है कि आपको सही तरीके से मैं जवाब दूँ। बट अगर आप एक तरीके से किसी के पीछे ही पड़ जाओगे तो वो बेचारा एट द एंड, तो भगवान तो है नहीं, इंसान है। और आज इतनी बड़ी गलती लोग कश्मीर में कर रहे हैं, हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, लेकिन एक बेचारा हमारा भाई है कपिल, वो कुछ गलत कर रहा था, हमारा वही मैं कर रहा हूँ, हमारा नज़रिया, हमारा फोकस वहाँ पे है कि तू गलती कर, लेकिन जो गधे वहाँ गलती कर रहे हैं तुम घूमो आराम से। सो मैं सबसे यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि हम मेन मुद्दों पे फोकस करें, ना कि हम ये बाकी ऊट पटांग बातों में ध्यान। लास्टली जानना चाहूँगी, देयर इज़ ऑल्सो रिपोर्ट दैट कि आप और भारती एक शो लेके आ रहे हैं जो कपिल के शो को रिप्लेस कर रहा है, इज़ इट ट्रू? नहीं, हम लोग उसके शो को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, बट लास्ट अभी मेरा ड्रामा कंपनी कर रहा था, तो अभी जनवरी में ख़त्म हुआ है, तो वी आर प्लानिंग अ न्यू शो ना। तो अभी चक्कर ये हो गया कि हमारी और मेरी भारती की प्लानिंग तो 2 महीने से चल रही है। अब मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ पंगा हो जाएगा और स्लॉट खाली हो जाएगा। मुझे तो था कि वो नया शो चलेगा, तो चक्कर क्या है कि जब भी हम कोई शो लाते हैं वो खुद स्लॉट खाली कर देता है। जब हम लोग लाइव ओके पे वो छोटा शो करते थे हम लोग, कॉमेडी क्लासेस, ठीक है, उसके बाद हमें था कि हमको कोई बड़ा शो करना चाहिए, वो भी अच्छा। कमाल की एक चीज़ है कि इनके साथ, हाँ, हम लोग ऐसे जुड़े हुए हैं कि हर शो की शुरुआत हमने इन्हीं के साथ की। मिका पाजी बचाओ, कोई आने को तैयार नहीं था कि बचाओ में कैसे होगा, और मिका पाजी ने आए, मिका पाजी और सोहेल भाई इन्होंने सपोर्ट किया, फिर सलमान भाई आए, तो हमारा शो चला। तो जब भी हम कोई चैनल पे जाते हैं वो खुद स्लॉट खाली कर देता है, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो अभी भारती और मैं, बचाओ शो था, इसमें मैंने नहीं जाना था, सबसे पहले गेस्ट सलमान भाई थे। उन्होंने बोला नहीं, पहले मैं 2 प्यारे बच्चे भेजता हूँ, इन पे पहले आजमाओ, फिर मैं देखता हूँ हुआ क्या देखता हूँ। तो हम बलि के बकरे बने, बट वी लव यू भाई, आप जहाँ कहोगे हम वहाँ खड़े हैं आपके लिए। तो शो इतना बड़ा हिट गया, एंड दोनों का कंपैरिजन नहीं है, कपिल अपनी जगह बहुत अच्छा है, एंड नंबर 1 है हमारे दिल में भी, हिंदुस्तान में भी। एंड उसके बाद अगर कोई शो को चलाता है तो कृष्णा के लिए भी मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। शो चलता भी है, मैं खुद कृष्णा का फ़ैन हूँ, भले हमारी बहुत बेइज्जती करता है बचाओ में, लेकिन फिर भी हम खुशी खुशी वो चीज़ें सहते हैं। थैंक यू। क्यों नहीं आ सकते? मैं इसलिए मैंने फ़ोन किया 5 साल बाद उसको। मैंने बोला यार नहीं, आई वुड लव टू, अच्छी बात है अगर हम लोग साथ में काम करें, मैं, कपिल हो, भारती हो, जब हम अलग अलग शो चला रहे हैं, अगर हम साथ में मिल जाएं तो बहुत बढ़िया शो प्लान हो सकता है। तो वी वांट के वो ये चीज़ों से ही शुड गेट वेल नाउ सून एंड ही शुड कम बैक नाउ। मैंने उसको भी मैसेज किया, ही शुड कम बैक स्ट्रॉन्ग नाउ विद अ बैंग अगेन, पीपल विल गिव यू चांस बिकॉज पीपल लव यू। तो मैं चाहूँगा कि उसके साथ मैं काम करूँ और हम साथ में शो लेकर आएँ जल्दी। थैंक यू। चाय रेडी है? हाँ सुमित भाई, मैं बोला था कि आप भी अपनी आवाज़ में कुछ कर देते तो अभी आपके लिए जरूर यार, सब मिल के गाएं, क्योंकि नवराज और राहुल को एंड में हम गाएंगे, दोनों बहुत टैलेंटेड हैं।
मैं अच्छा सिंगर नहीं, मैं पॉपुलर हूँ और ये बहुत अच्छे सिंगर है, तो मुझे लाइफ में पॉपुलर ही बनना है, अच्छे सिंगर तो दोनों मेरे भाई हैं। तो मैं इनको एंड में कहूँगा कि जब ये गाते हैं तो हम गा नहीं पाएंगे, बहुत सुर में गाते दोनों मेरे भाई। तो मैं सिंपल सा कोई भी कौन सा गाना गाऊँ, हुल्ले वाले गाऊँ, मुझे याद नहीं है गाना। चलो सलमान भाई के लिए गाना, वैसे तो रेस 3 में भी मेरा गाना आ रहा है एंड ये न्यूज़ मैंने आपके लिए खोल दिया सबके लिए, सो थैंक्स टू सलमान भाई। ये गाना मैंने अपने लिए बनाया था, पॉप सॉन्ग मैं बनाना चाहता था उस गाने को, तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा गाना, बहुत अच्छा गाना। तब उन्होंने गाना कहा कि ये मेरे गाना मेरे लिए रखना तुमने, तो वो गाना रेस 3 में अभी आ रहा है। रेडी? हाय दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मीका सिंह और आज हम बहुत ही प्यारा गाना लॉन्च हो चुका है ऑलरेडी। 2 दिन पहले ही गाना रिलीज़ हुआ और बहुत ही अच्छा इसका रिस्पांस है पूरे सोशल मीडिया पे भी, टीवी पे भी, वर्ल्ड वाइड हमने ये गाना रिलीज़ करा है एंड बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे ईमेल आ रहे हैं कि गाना बहुत अच्छा, सिंगर बहुत चाहिए। सिंगर का नाम है तारिका है एंड गाने का नाम है हुल्ले हुलारे। सो आई एम सो हैप्पी कि आज गाना फाइनली लॉन्च हो गया एक अच्छे तरीके से। जी, मैं मीका जी से इनफैक्ट पिछले 6-7 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ। मैंने जब शुरुआत की थी आई वॉज़न्ट टू इंटरेस्टेड इन म्यूज़िक एंड जबकि मेरी मॉम भी सिंगर हैं, बट मेरे अंदर वो म्यूज़िक का इंटरेस्ट जगाने वाले मीका जी हैं, बिकॉज द वे ही परफॉर्म्स एंड इंटरेक्ट्स विद हिज ऑडियंस एंड ऑल ऑफ दैट, मुझे वो एक दिल में है कि वाह मुझे भी ये सीखना है, मुझे भी करना है। तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है एंड उनके साथ आज ये गाना मेरा रिलीज़ हुआ है। इट इज़ नथिंग कुड बी बेटर, आई बिलीव। हाँ जी, my family touchwood has been very supportive. My parents, my dad has supported my mom a lot and my parents together have supported me a lot. मेरी मम्मा का नाम है पूनम भाटिया। उन्होंने काफ़ी प्लेबैक किया इंडस्ट्री में। इवन माई नानी इज़ अ डबल संगीत विशारद, सो आई बिलोंग टू अ म्यूज़िकल फैमिली। मैं उनके जैसे कभी ट्रेनिंग मैंने ली नहीं थी, बहुत लेट शुरू किया, बट नाउ दैट आई एम इन इट आई रियली एन्जॉय इट एंड आई होप टू डू ब्रिंग अ लॉट ऑफ मोर म्यूज़िक टू यू गाइज। जी हाँ जी, वेल डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगर्स हैं जिनका अलग अलग जॉनर है। कोई लोग बहुत अच्छा क्लासिकल गाते हैं, उनको भी हम आगे लेके आ रहे हैं एंड बहुत सारे लोग हैं जिनको पॉप में बहुत अच्छा उनका गला चलता है। बहुत सारे रैपर हैं, बहुत सारे रैपर सिंगर्स हैं, सो बहुत सारे पंजाबी सिंगर्स हैं, फोक सिंगर्स हैं, सूफी सिंगर्स हैं। सो बहुत जल्द आप इन सबको देखते रहेंगे एंड ऑलमोस्ट हमने 100 वीडियोज़ तो अभी तक कर ही दिए हैं।
और 100 हमारे ऑलरेडी रेडी हैं, जो हमारा ये टारगेट नहीं कि हम हर रोज़ वीडियो डालें, हमारा टारगेट क्या है कि अच्छा क्वालिटी वर्क हमारा हो, चाहे एक गाना हम महीने में रिलीज़ करें या 4 करें, लेकिन चारों गाने अच्छे होने चाहिए, चलें ना चलें डिपेंड ऑन द ऑडियंस, बट आप सुन के ये ना बोले कि ये गाना बहुत बेकार है। जी, मैं तो चाहूँगा सभी को करना चाहिए, स्पेशली जो लोग जिनका अच्छा नाम हो गया है। आई थिंक वो हर फील्ड में, चाहे को किसी एक्टर को प्रमोट करे, न्यू कमर्स को, और चाहे किसी सिंगर को, राइटर को, डायरेक्टर को, कंपोज़र को, तो बहुत बड़ा एक हेल्प हो सकता है, सपोर्ट हो सकता है। मैं नहीं कहता कि आप उनको 4 गाने गवाओ, 10 गाने गाओ, आप उनको सिर्फ एक चांस दो, एक चांस से ही बहुत फर्क पड़ जाता है। सो दिस इज बड़ा हैप्पी से। आज के 24 के लिए एक बड़ा चांस है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी जो कि बहुत ही इफेक्टिव साबित हो रहा है। ज़्यादातर क्या होता है, जैसे बहुत पहले मैंने देखा था, एक बच्ची थी छोटी सी, 10 साल की बच्ची थी, वो बहुत ही अच्छा गाना गा रही थी, लता जी का, बड़ा वायरल हुआ था वो, लेकिन फिर गायब हो गया। तो इसलिए डिजिटल हेल्प जरूर कर रहा है कि आपको अच्छा कंटेंट, एक अच्छा टैलेंट ढूंढ के लाता है, बट उसके लिए आगे कंपनी चाहिए जो उनको, बच्चों को आगे लेके जाए, ना कि हम सिर्फ उनको इनका म्यूज़िक लॉन्च करते हैं, बट साथ के साथ इनको मैनेज भी करते हैं कि व्हाट इज़ नेक्स्ट, क्या इनको परफॉर्म करना चाहिए, क्या गाना चाहिए, कैसे खड़ा होना चाहिए। ये सारी मैनेजमेंट हमारी पूरी टीम है, तो अगर सब जुड़ के करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू, आप कंटिन्यू करो। बहुत अच्छी रही है। इनफैक्ट मेरा जो टाइप का म्यूज़िक मैं गाती हूँ, इवन माई जॉनर इज़ अ लॉट ऑफ पार्टी म्यूज़िक एंड स्टफ, सो डूइंग हुल्ले हुलारे इज़ एक्चुअली पंजाबी फोक एक्सप्रेशन। तो हमने उस एक्सप्रेशन को लेके बाकी एक पूरा नया गाना रिक्रिएट किया, वी मेड अ न्यू पार्टी ट्रैक ऑल टुगेदर। सो या इवन आई डिड समथिंग व्हाट ही डज, उनके जॉनर वाली वो चीज़ की मैंने, ऑब्वियसली उनके जैसे नहीं, एक अलग तरीके से, बट या बहुत अच्छे हैं, उनसे सीखने बहुत मिलता है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, मीका जी जब म्यूज़िक पे आता है, लाइक ही कैन बी रियली स्ट्रिक्ट एंड स्टर्न, बट अदरवाइज ही इज़ अ वेरी नाइस मैन एंड ही इज़ वेरी हम्बल। बट म्यूज़िक की जब बात आती है, येस ही इज़ अ लिटिल स्ट्रिक्ट एंड आई थिंक दैट इज़ नीडेड। वो इवन जैसे हम एक इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, जहाँ पढ़ने जाते हैं, एक वो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस, एक स्टर्ननेस ज़रूरी होती है, इट जस्ट हेल्प्स अस ग्रो, सो इट्स जस्ट दैट वे। बाकी ही इज़ एन अमेजिंग पर्सन टू वर्क विद एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम, बट ही डजंट लाइक एनी नेग्लिजेंस व्हेन इट कम्स टू म्यूज़िक। जब कोई स्ट्रगल, न्यूकमर स्ट्रगल करता है, उसको किसी का सपोर्ट मिला, हाँ, बड़ी बात होती है न्यूकमर्स के लिए, हाँ, क्या आपका एक्सपीरियंस? बहुत बड़ी बात होती है इनफैक्ट, एंड मीका जी इज़ नोन फॉर दिस। वो उन्होंने, आई एम जस्ट वन ऑफ द पीपल हु ही हैज़ सपोर्टेड, एंड लाइक म्यूज़िक वाइज वो सबको बहुत, मैं तो खैर उनके साथ अभी बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, उनके साथ शोज़ करी हूँ, बट आजकल भी लाइक जो नए आर्टिस्ट आते हैं, पीपल अप्रोच हिम, वो किसी को ना नहीं बोलते, वो सबको आगे आने का मौका देते हैं। जैसे आप अगर ओल्ड इज़ गोल्ड देखेंगे, उसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट फीचर हुए हैं विद सम डिफरेंट सॉन्ग्स एंड स्टफ, सो ही गिव्स अ चांस टू अ लॉट ऑफ पीपल, सो दैट इज़ very needed nowadays. I think people should support new people. Who's your favorite singer in Bollywood? My favorite performer artist in male singers is obviously Mika Singh, no one better. And in females, I would say I'm a Shreya Ghoshal fan. Okay, thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.